Hello everyone. Can you see this board? Guys, is this board visible? Yes, sir. So have you tried this problem set? किया है Yes, आप लोगों ने? Yes, sir. कहाँ पे डाउट है? Any doubt anywhere? Yes, sir. Yes. Which problem? The third and sixth. A glass plate. So there are two glass plate. One has index 1.6 and other has 1.8. They are in contact along a line. So the situation look like this. Let me try to make a 3D diagram. This is one plate and let us say this is horizontal plane. ये horizontal plane है. So एक plate आपका ये है. Okay. And obviously these are some, I mean, you cannot see this side from the front side. And there is another plate. So this has index how much? Let us say this has index 1.8. Okay. And there is another plate, and the second plate is in contact with first plate along a line. So दूसरी plate कुछ इस तरीके से हो सकती है. So along this line, they are in contact. Okay. And obviously you cannot see this side. And so they are in contact along this line. Let me call it AB line. So A और B is the common line. And they are at some angle. दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ angle है. This angle is equal to 0.5 degree. There is a light of wavelength 500 angstrom incident vertically on the page. ऊपर से light आ रही है and light falls on this setup vertically. Light इस पूरे setup पे vertically incident होती है. So what kind of pattern will you see? आपको क्या दिखाई देगा यदि आप ऊपर से देखते हैं तो? इधर से लाइट आ रही है, यदि आप उधर से ही देखेंगे, what will you see? So 5000 angstrom is the wavelength of light which corresponds to roughly yellow color. So आपको क्या दिखाई देगा यदि आप इधर से देखते हैं तो? Anyone? The circular fringes. Why?
सर्कुलर क्यों है? सर बिकॉज जो एयर का गैप है सर उससे होगा ना। So let me also make a 2D schematic. इसका एक 2D schematic आप इस तरीके से बना सकते हैं. जो लोअर प्लेट है, I mean if some person is looking from side, यदि कोई साइड से देखेगा तो उसको इस तरीके से सब कुछ दिखाई देगा. This is lower plate. दूसरी प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से है. Light is coming like this. Light इसके ऊपर इस तरीके से आ रही है. And some person is looking downward. कोई आदमी ऊपर से ही देख रहा है नीचे की ओर. So, जो आदमी है पर्सन ए, लेट मी से ये कोई पर्सन ए है, वो यदि ऊपर से नीचे को देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा? Semicircular rings. So why सर्किल? क्यों आपने कहा कि सर्किल बनेगा? इक्वल इंटेंसिटी रहेगी या इंटेंसिटी में कम ज्यादा हो सकता है? इंटेंसिटी वेरी कर सकती है सर. वेरी कर सकती है. क्यों वेरी करेगी? सर क्योंकि जो स्लिट की विड्थ है सर वो सेम नहीं है सर, वो थीटा के साथ अलग अलग हो रही है. Okay. So let us say we focus on the light which is coming from this thickness. जो लाइट इस जगह से और इस 3D डायग्राम में मान लीजिए इस लाइन के अलोंग, मान लीजिए एक लाइट पल्स यहाँ गिरती है. कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाकर के फिर रिफ्लेक्ट होगा. एंड यू सी दीज टू लाइट. क्या इंटेंसिटी होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ दिस फिल्म हियर. और 2D स्कीमेटिक में जो लाइट ऊपर से आई, एक लाइट ये गई इधर को, दूसरी लाइट नीचे जाकर के फिर ऊपर को आती है. द फेज डिफरेंस between these two light, let me call it ray 1, आप ray 1 के लीजिए, and ray 2. The phase difference between R1 and R2 depends on this thickness T of the film at this point. यहाँ पे जो thickness उसके according phase difference कुछ भी हो सकता है. If it is pi, dark हो जाएगा. 0 है, bright रहेगा. 0 से pi के बीच में कुछ है, accordingly कुछ intensity होगी, ना ही dark ना ही bright. As long as this thickness is same, हर वो point जहाँ पे यही thickness है, आपको लाइट भी उतनी ही मिलेगी. इस 3D डायग्राम में वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे थिकनेस बदलती नहीं है. मान लीजिए यहां थिकनेस आपका 1 मिलीमीटर है, सिर्फ 1 मिलीमीटर और कहां कहां मिलेगा आपको? बता सकते? वो कौन सा पाथ है, वो कौन सा कर्व है जिस पर थिकनेस 1 मिलीमीटर रहता है? कॉमन लाइन के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन. AB लाइन के पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन, राइट? I mean you are talking about this line and same line from this vertical bar. Okay. So the thickness between these two remains constant. So if you see dark here, यदि आपको इस जगह पे dark दिखाई दे रहा था, you will see dark along this line. AB के पैरेलल ये जो लाइन जा रही है, सभी जगह dark दिखाई देगा. या bright दिख रहा था, if you see bright here, it will be bright along this line. So what kind of pattern will you see? आपको किस तरह का पैटर्न मिलेगा? रिंग्स या स्ट्रेट लाइंस?
Straight lines. Sir, straight lines. Straight lines, right? So if you see from top, आपको कुछ straight lines दिखेंगे. Let me just make a rough 3D schematic. So you can see a pattern like this from top. Dark, then bright, then again dark, then again bright, or something like this. Okay. So you will see straight line. यहाँ पे कोई doubt है आपको? Now calculate the fringe spacing. यदि straight line को fringe कहते हैं आप, fringe spacing means किन्हीं भी दो bright या किन्हीं भी दो dark के बीच में कितना gap होगा. Means let us say here जो भी t यहाँ पर है ये dark को correspond करता है. मान लीजिए यहाँ पे आपको dark मिला. कुछ देर कुछ आगे बढ़ेंगे, for some other t value you will get bright, फिर से dark मिलेगा, फिर bright मिलेगा. Let us say this is next position where you get dark. इन दो पोजीशन के बीच कितना सेपरेशन है? This is asked in this problem. ये पूछा गया है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? और इन दिस 2D schematic यदि यहाँ पर डार्क है, मान लीजिए यहाँ डार्क है, अगला डार्क यहाँ मिलता है, सो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? सो यदि यहाँ पे डार्क है, व्हाट इज द पॉसिबल पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 R2? R1 R2 के बीच में क्या पाथ डिफरेंस हो सकता है? या क्या फेस लैम्डा 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 और लैम्डा बाई 2? So a path of light is something like this. जो लाइट का पाथ एक अप्रोक्सीमेट पाथ यदि आप बनाएंगे, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर, फिर लाइट नीचे भी जा रही है, फिर से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाएगी एंड इट गोज हियर. कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है? ये रे 1 है, ये रे 2 है. यदि यहाँ पर थिकनेस t है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 2 एंड रे 1? एंड रिमेंबर दिस एंगल इज सो स्मॉल. ये एंगल कितना है? थीटा, और ये बहुत छोटा है, हाफ डिग्री. सो अप्रोक्सीमेट पाथ डिफरेंस बताइए R2 R1 के बीच में. 2t. 2t, right? So 2t is the path difference. What is the phase difference? यदि path difference 2t है तो phase difference कितना होगा? 2 pi by lambda into 2t. 2kt. 2 pi by lambda. Lambda path difference पे 2 pi phase difference आता है. 2t पर this much. इतना phase difference आया path की वजह से. क्या कोई phase difference reflection की वजह से भी है? ये 1 Plus minus pi. 8 का इंडेक्सेस दिए गए हैं. 1.8, 1.7 और बीच में एयर है इस टाइम. दिस इज एयर. सो R1 के लिए दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम. जो R1 रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, नो फेज चेंज. R2 इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम. सो फेज डिफरेंस आ रहा है रिफ्लेक्शन से भी, ड्यू टू पाथ डिफरेंस and phase difference due to reflection. कितना है? प्लस माइनस पाई. टोटल फेज डिफरेंस कितना है?
दोनों को सम कर दीजिए 2 पाई प्लस माइनस, एक्चुअली फेज डिफरेंस कैन बी प्लस और माइनस, प्लस माइनस पाई. This phase difference will decide whether you will see bright or dark. T is equal to 0 पर क्या सिचुएशन है, मतलब जहां पे दोनों ग्लास मैच कर गए. How much is the phase difference? वहां पे कितना phase difference है? T is equal to pi. So at T is equal to 0 क्या मिलेगा आपको? Phase difference pi और dark. Dark. So if you see the corner, यदि आप इस कॉम्बिनेशन का कॉर्नर देखेंगे, यहाँ आपको डार्क लाइन मिलेगी. ओके, और इस 3D डायग्राम में द कॉर्नर इज एक्चुअली डार्क लाइन. ऊपर से देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ये कॉर्नर सही से दिखाई नहीं देगा आपको. इट्स लाइक ए डार्क लाइन हियर. ओके, नाउ एज यू गो टुवर्ड्स राइट, जैसे जैसे आप राइट की ओर बढ़ेंगे, टी विल इंक्रीज, टी बढ़ना शुरू करेगा. फॉर सम वैल्यूज ऑफ टी आपको ब्राइट की कंडीशन मिलेगी, कुछ के लिए डार्क की कंडीशन मिलेगी. मान लेते हैं किसी t इज इक्वल टू T1 पर, कोई भी t हो सकता है वो, फेज डिफरेंस हो जाएगा कितना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा 2T1 प्लस माइनस पाई. एंड लेट अस से दिस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू समथिंग लाइक some 2n pi. Okay, n is equal to 0 means 0 पर आ गए. Let us say n is equal to 100 here. So total phase difference यहाँ पे 200 पाई का है. So क्या मिलेगा यहाँ पे आपको इस थिकनेस पर? t is equal to T1 पे क्या मिलेगा यदि ये टोटल फेज डिफरेंस 2n पाई है तो? Bright. Bright. Okay. नाउ कितना और आगे बढ़े कि आपको फिर से ब्राइट मिले? T1 प्लस डेल्टा टी कि हमको फिर से ब्राइट मिले, बता सकते हैं उस टाइम डेल्टा फाई किसके बराबर होगा? 2n plus 2 pi. 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई, राइट. इसके बीच में एक डार्क आएगा, डार्क कब आएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई पर, राइट. सो कितना आगे आप आगे बढ़े, दैट करस्पॉन्डिंग थिकनेस इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा माइनस कर दीजिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई. डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई. लैम्डा डिस्टेंस है, वो ऑब्वियस भी है. पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा, तभी आपको ब्राइट मिल सकता है. सो अगली डिस्टेंस लैम्डा होनी चाहिए. कितना आगे बढ़े कि थिकनेस लैम्डा से बढ़ जाए? यदि यहाँ पे थिकनेस कुछ थी, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे थिकनेस लैम्डा से और बढ़ गई, कितना दूर चलने पे बढ़ेंगे, कैसे पता करेंगे आप? तो कहीं पे थिकनेस टी थी, थोड़ा सा आप आगे चले, मान लीजिए आपने x यूनिट आगे बढ़े और थिकनेस आपकी t प्लस लैम्डा हो गई. तो यहाँ पे आपको ब्राइट मिल रहा था और फिर यहाँ पे भी ब्राइट मिला है. बता सकते हैं x की वैल्यू क्या है? ये थिकनेस t थी यहाँ पे थिकनेस t प्लस लैम्डा है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये x कितना है कि वर्टिकल हाइट t से t प्लस लैम्डा हो गई. ये एंगल डेल्टा Lambda upon tan theta. व्हाट इज tan थीटा? Lambda x upon t. Tan theta is how much? Lambda upon x, right? Or x is equal to how much? Lambda upon tan theta. Lambda upon, and tan theta is nearly equal to theta for small theta. So this is the value of x. इतना आगे बढ़ने पर आपको
दूसरा ब्राइट मिलेगा। और दिस इज द विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये फ्रिंज का विड्थ है। पहला ब्राइट यहाँ मिला था, दूसरा ब्राइट यहाँ मिला, तो इन दोनों के बीच में एक डार्क है। इज इट क्लियर नाउ? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आप। किसको क्लियर नहीं है जस्ट रेज योर हैंड्स। किसी को डाउट बचा है तो आप बता सकते हैं अभी भी। What about next problem? नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है आपको? Okay, there is one more problem. The whole apparatus is immersed in an oil of refractive index 1.7. पूरे सेटअप को एक ऑयल में डिप कर दिया गया है। किस तरह के डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे? अब कोई आंसर करेगा इस चीज को? सर जो पाई का फेस डिफरेंस आ रहा सर वो नहीं होगा सर फर्स्ट केस में। ये कितना है? नंबर गलत लिख दिया है। 1.6, 1.8, 1.7. 1.6. So पहला डिफरेंस, R1 is also now reflecting from a denser medium. R1 भी denser medium से reflect कर रहा है. So there is a phase change of pi there. R2 is also reflecting from denser medium. So there is a phase change of pi there also. Total phase difference कितना होगा? Due to reflection, either 0 or 2 pi. दोनों के केस में it's a constructive interference due to reflection part. Reflection part की वजह से तो कोई phase change नहीं आ रहा है. So you were seeing dark at the corner. पहले आपको जहां पे दोनों ग्लास प्लेट टच कर रही हैं there was dark. अब क्या होगा वहां पर? It is now Right. This is one difference. और क्या difference मिलेगा आपको? What about this fringe width? क्या ये उतनी ही रहेगी? या कम या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। Now the wavelength, see जो आप path difference calculate कर रहे थे, path difference तो उतना ही है, T2 minus T1, बट उतने पर आपको ब्राइट मिलेगा डार्क मिलेगा वो डिपेंड करता है कि लैम्डा कितना है, राइट? पाथ डिफरेंस तो अभी भी 2t है, बट लैम्डा तो चेंज हो गया ना। नाउ लैम्डा हैज चेंज टू लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम किसके बराबर है? लैम्डा अपॉन 1.7, right? So now your wavelength is reduced. Accordingly, the position of all the bright and dark will change. सेंट्रल ब्राइट है, कंफर्म है, उसके बाद सभी ब्राइट और डार्क की पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम या ज्यादा होगी। कम होगी या ज्यादा होगी? यदि लैम्डा कम हो गया है तो कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। मींस सारी फ्रिंजेस एक तो अपना पैटर्न चेंज कर देंगी, जो पहले ब्राइट थी वो डार्क बनना शुरू हो जाएगी। सेकंड, दे विल श्रिंक, सबका साइज थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, सो दे विल श्रिंक टुवर्ड्स लेफ्ट। दीज आर टू चेंजेस। ओके, यहां से भी देख सकते हैं आप, द विड्थ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो लैम्डा कम होगा तो विड्थ भी कम होगी, दे विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। दीज आर टू चेंजेस व्हेन यू डिप this plate in liquid. प्रॉब्लम 6 में क्या आपको दिक्कत हुआ है? पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे रिंग पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। Assume that the radius of curvature of the curved surface is 400 centimeter. सिंगल लेंस के लिए आपने किया है सब कुछ। यदि एक ही वेवलेंथ होती, लैम्डा इज इक्वल टू 400 एंगस्ट्रॉम, तब किस तरह का पैटर्न बनता? ए पैटर्न लाइक दिस। सेंट्रल में डार्क एंड देन
there are rings around it. So these are dark ring. ये मैंने dark ring plot करी है for lambda is equal to 4000. सेंट्रल में भी एक डार्क है, उसके बाद कुछ और डार्क रिंग है जो मैंने स्किप कर दी है, एंड देन दिस रिंग पैटर्न कीप ऑन कंटिन्यूस. ये रिंग पैटर्न चलता ही रहेगा. लैम्डा इज इक्वल टू 4000. हाउ मच? कितना वेवलेंथ है दूसरे का? मान लीजिए 10th रिंग था लैम्डा 1 का. लैम्डा 2 का 10th रिंग कहाँ मिलेगा? इससे पहले या इसके बाद? या एग्जैक्टली इसी के ऊपर? बाद में, इसके बाद, राइट? कितना डिफरेंस होगा? फॉर्मूला आपको बताता ही है, आर एन स्क्वायर इज एन लैम्डा आर, और आर एन इज स्क्वायर रूट एन लैम्डा आर, राइट? सो लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन लैम्डा 2. लैम्डा 2 हल्का सा ज्यादा बड़ा है, तो उसका रेडियस भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा. लेट मी ट्राई टू मेक ए रिंग पैटर्न फॉर लैम्डा 2 आल्सो. लैम्डा 2 के लिए भी रिंग पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं. So slightly bigger ring, but बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. So it will like roughly overlap on the previous ring. पुरानी रिंग के ऊपर ही overlap करता हुआ लगेगा. Okay. 11th रिंग कुछ overlap करेगा, कुछ नहीं भी करेगा. 12th रिंग हो सकता है आधा overlap करे, आधा ना करे. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिंग ओवरलैप ही ना करे, राइट? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? व्हाट इज द रेडियस ऑफ लैम्डा 1? लैम्डा 1 की रेडियस क्या क्या है? फर्स्ट रेडियस इज 0 लैम्डा आर और 0. सेकेंड रेडियस लैम्डा आर. थर्ड रेडियस 2 लैम्डा आर. फोर्थ रेडियस इज 3 लैम्डा आर, 5 लैम्डा आर एंड सो ऑन. लैम्डा 2 के साथ क्या होगा? 0 लैम्डा 2 आर, 1 लैम्डा 2 आर, 2 लैम्डा 2 आर, 3 लैम्डा 2 आर, 4 लैम्डा 2 आर. डार्क स्पॉट दोनों का एग्जैक्टली मैच करता है, राइट? सेंट्रल. फर्स्ट रिंग में कितना डिफरेंस है? रूट लैम्डा 2 माइनस रूट लैम्डा 1 इंटू आर का. रूट लैम्डा 2 माइनस रूट लैम्डा 1 बहुत ही छोटा नंबर है. सेकेंड रिंग में कितना डिफरेंस है? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट लैम्डा 2 माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा 1 का. डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया. कितना? पहले का 1.5 गुना, 1.4 टाइम्स. थर्ड रिंग्स में कितना डिफरेंस आ रहा है? रूट आर रूट 3 कॉमन, रूट लैम्डा 2 माइनस रूट लैम्डा 1. अब डिफरेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया है दोनों के रिंग्स में. सो यू कैन सी एज द रिंग पैटर्न इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिंग का ऑर्डर बढ़ रहा है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज डिक्रीजिंग. सेंट्रल तो परफेक्ट ओवरलैप था, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ओवरलैप हटता जा रहा है. देयर इज ए पोजिशन समवेयर इन दिस रिंग पैटर्न. कहीं एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि मैक्सिमा ड्यू टू लैम्डा 1 इज
इक्विवेलेंट टू मिनिमा डी टू लैम्डा 2। मतलब जहां पे लैम्डा 1 तो ब्राइट रिंग बना रहा है, वहां पे लैम्डा 2 डार्क बनाने लगा। और यदि लैम्डा 1 डार्क बना रहा था तो लैम्डा 1 ब्राइट बनाने लगा। इस केस में किस तरह की लाइट इंटेंसिटी दिखेगी वहां पे आपको? लाइट दिखेगी या नहीं दिखेगी? रिंग दिखेगा या नहीं दिखेगा? एज फार एज कलर इज कंसिडर्ड, आपको कलर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखने वाला। ये भी रफली येलो है और इसमें थोड़ा सा कलर अलग होगा, बट आप देख नहीं सकते उस डिफरेंस को। सो दिस इज आल्सो येलो। तो बता सकते हैं उस पोजीशन पे क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा? डार्क। डार्क मिलेगा। लैम्डा 1 की वजह से लाइट नहीं पहुंच रही, पर लैम्डा 2 की वजह से लाइट पहुंच रही श्रीमान वहां पे। सॉरी, लैम्डा 1 की वजह से लाइट पहुंच गई है, लैम्डा 2 की वजह से लाइट नहीं पहुंच रही है। तो ब्राइट मिलेगा। सर रिंग इंटेंसिटी ही नहीं कम बनेगी सर। आज मिलेगा। ये ऐसा मान लीजिए एक बल्ब तो जल के एक बल्ब नहीं जला उस जगह पर। सो यू विल सी सम इंटेंसिटी। दोनों की वजह से बनता इट वाज सुपर ब्राइट, दोनों की वजह से ही नहीं बनता इट वाज सुपर डार्क, एक की वजह से बन रहा है दूसरी की वजह से नहीं बन रहा है। सो इट इज सम हाफ इंटेंसिटी, राइट? इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा बट होगा। उसके ठीक बाद लैम्डा 1 की वजह से तो नहीं बना, बट लैम्डा 2 की वजह से ब्राइट आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? ब्राइट। अगेन हाफ इंटेंसिटी। तो आपको लगेगा कि कोई रिंग है वास्तव में वहां पे? नो सर। सो दिस पैटर्न विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस। काफी बड़ी डिस्टेंस तक ये पैटर्न चलता रहेगा। जहां डार्क बनना चाहिए था वहां लैम्डा 2 ब्राइट बना देगा, जहां ब्राइट बनना चाहिए था वहां लैम्डा 2 डार्क बना देगा, एंड वी विल नॉट गेट एनी रिंग पैटर्न। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसअपीयरेंस ऑफ द इंटरफेरेंस। क्योंकि अब आपको कोई रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई ही नहीं देगा। सवाल ये है, ये कंडीशन आएगी किस जगह पर? कैसे पता करेंगे ये कंडीशन कहां मिलने वाली है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वो n की वैल्यू क्या है? वो कौन सा रिंग का ऑर्डर है जहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है? एनीवन? सर जब एक का मैक्सिमा और एक का ओके, एक की वजह से मैक्सिमा की कंडीशन और दूसरी की वजह से मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस सर। मिला कोई आंसर आपको? ट्राई किया था आपने? सो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। जो आपने कहा वो सही है, बट आई स्टिल हैव ए इंट्यूशन दैट यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। हो सकता है इसके बावजूद भी आपको सही आंसर ना मिल पाए। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी। ऑल ऑफ यू ट्राई ऑन योर ओन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देयर आर चांसेस दैट यू मे गेट डिफरेंट रिजल्ट। हो सकता है आपको अभी भी डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिले। चेक कीजिए एक दूसरे के आंसर में कहाँ आपको गलती लगती है या आपके आंसर में कहाँ गलती लगती है, एंड वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट आंसर इन नेक्स्ट क्लास। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, कंसेप्ट को लेके कोई डाउट है? कंसेप्ट को लेके मतलब क्यों रिंग डिसअपीयर हो रही है, इस कंसेप्ट को लेके कोई डाउट है अभी? नो सर। राइट सर। यस यस। एनी अदर प्रॉब्लम? इसके अलावा और भी कहीं डाउट? फर्स्ट प्रॉब्लम का क्या आंसर मिला है आप लोगों को?
क्या ये फॉर्मूला काम करता है हर जगह पर? नो सर। ये फॉर्मूला कब काम करता था? इफ यू रिमेम्बर, व्हेन वी ड्राइव दिस फॉर्मूला, कुछ कंडीशन हमने मानी थी। क्या कंडीशंस थी? Very less. कैपिटल डी स्मॉल डी। राइट, यहाँ पे कैपिटल डी कितना है? 100। स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी की क्या वैल्यूज है? 0.1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर तो आप मान सकते हैं वो छोटा है। 1 सेंटीमीटर इज आल्सो ठीक है, 1% के आसपास है। 4 सेंटीमीटर इज लाइक 4% ऑफ कैपिटल डी। डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की बात करें तो ये कितना है? इट इज 4% ऑफ कैपिटल डी। क्या आप मानेंगे इसको स्मॉल? आई मीन कैन यू नो सर। No, sir. Comparable. ये ऐसा मान लीजिए कि मानते हैं तो आपको बहुत बड़ा एरर मिलेगा, नहीं मानते हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बट आपकी रिजल्ट एक्यूरेट हो जाएगी। सवाल यही है, यदि आप इसको एक स्मॉल नहीं मानते हैं तब किस तरह का पैटर्न बनेगा? जब आपने इग्नोर कर लिया था, छोटा माना था डी को, तब आपको स्ट्रेट लाइन मिलती थी। अब आपको क्या मिलने वाला है? डिड एनीवन ट्राई? किसी ने कोशिश की इसको सॉल्व करने की? कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? एंड सिर्फ पैटर्न, यदि बात की जा रही है तो पैटर्न तो किसी पेपर पे बनाएंगे आप या किसी स्क्रीन पे बनेगा। सो अभी तक जो हम रे डायग्राम बनाते आ रहे थे वो बहुत सही डायग्राम भी नहीं है। हमने स्क्रीन बनाई थी एक लाइन के थ्रू, राइट? जो हम इसको स्क्रीन कहते थे, वी आर एक्चुअली सेइंग दैट वी हैव पुट ए पेपर परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। हम ये मान रहे थे कि एक पेपर हमने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है। यहाँ स्लिट थी एंड व्हेन वी से दैट इफ वी आर गेटिंग ब्राइट हियर, यदि हमने कहा यहाँ पे ब्राइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट ब्राइट था। वी वर ट्राइंग टू से दैट ए लाइन, इसके पर इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वो पूरी की पूरी लाइन ब्राइट है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एजम्पशन था और ये काम भी कर रहा था इन ए पर्टिकुलर केस, जब ये डिस्टेंस डी इस कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में छोटी थी, राइट? इफ दिस डिस्टेंस इज नॉट स्मॉल, क्या जरूरी है कि आपको एक स्ट्रेट फ्रिंज ही मिलेगी या कोई और शेप भी पॉसिबल हो सकती है? ये दो जस्ट पिन होल्स हैं, ये आपने कागज में दो सर्कुलर होल किए छोटे से और उसको आपने स्लिट यूज कर लिया है। तो पहला सवाल तो ये है, क्या हमेशा ही आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती हैं या कोई दूसरी शेप भी पॉसिबल है? सर दूसरे भी पॉसिबल है। दूसरी भी पॉसिबल है। दूसरी भी पॉसिबल है। यदि ऐसा है then we cannot replace this paper, जो पेपर हम स्क्रीन के तरीके से यूज कर रहे हैं, we cannot show it by just a line, हमें इसका एक 2D व्यू देखना पड़ेगा, right? So I am going to replace this paper by a 3-dimensional version. Okay? सभी कुछ 3-dimensional version बनाने की कोशिश करते हैं and we will see किस तरह का पैटर्न बन सकता है।
So this is the paper. Okay. ठीक है, और एक्सिस को पहले जैसे ही रखते हैं. वर्टिकल मेजरमेंट वाज y, जो वर्टिकल में था हम इसको y कह रहे थे, तो अभी भी y कहेंगे. ओके. द मेजरमेंट्स विच आर अलोंग राइट, जो पेपर के परपेंडिकुलर राइट में थे उसको हम x कह रहे थे, अभी भी x ही कहेंगे. ओके. बट ये पेपर की विड्थ के अलोंग जो पहले डायमेंशन नहीं दिखाई दे रही थी, इसको हम क्या बोले, जेड एक्सिस. तो दिस इज जेड एक्सिस. ओके. ये पहले नहीं देख रहे थे हम, अब हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है. लेट अस मेक स्लिट आल्सो. स्लिट भी डिजाइन करते हैं. सो लेट मी यूज द सेम थिंग हियर आल्सो. ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे भी रख लेते हैं. और स्लिट मीन्स इस पेपर में दो छेद करने हैं. सो वन होल हियर, एक होल यहाँ कर दिया, सेकंड होल here. Okay. There are two holes of very small size. Size इतना छोटा है कि हम उसको काउंट भी नहीं कर रहे. So this is the x-axis. हम इसको x-axis कहेंगे, जो दोनों होल्स के बीच में से जा रही है और पेपर को कट करते हुए आगे को जा रही है. तो यहाँ पे आप x = 0 मान लीजिए. ये पॉइंट कितना दूर है, दिस इज x = d. ओके. यहाँ पे हमको ब्राइट स्पॉट मिलता था पहले, अब भी डू नॉट नो क्या मिलने वाला है. एंड वॉट एवर इज द पैटर्न दैट विल बी ऑन दिस स्क्रीन. कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर. क्या इंटेंसिटी होगी यहाँ पर? इंटेंसिटी विल बी डिसाइडेड बाय रे कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स. इस सोर्स से जो लाइट पहुंच रही है, रे कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, इस सोर्स से जो लाइट पहुंच रही है. हाउ मच इज दिस पाथ एग्जैक्टली? एग्जैक्ट पाथ बताइए कितना है r1 और r2. ये पॉइंट कैसे लोकेट किया जाए? सो ये पॉइंट इस पेपर पे है. ये पेपर क्या है? ये पेपर एक बाइजेट प्लेन है. सो थोड़ा सा बाइजेट एक्सिस इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये y ये z एक्सिस, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज z एक्सिस. तो ये कोई पॉइंट है जो हम कहेंगे बाई जेड पॉइंट. मींस ऊपर को बाई डिस्टेंस पर और फिर राइट की ओर जेड डिस्टेंस पर. हाउ मच इज r1? r1 कितना है बता सकते हैं? ये डिस्टेंस dy2 और ये डिस्टेंस भी dy2. डायग्राम क्लियर है आपको? √d² + d²/4. लेट मी मेक सम सपोर्टिंग लाइन. बाकी लाइंस पे भी ऐड कर देते हैं फॉर योर इजीनेस ओनली. ये बाई एक्सिस से जो बीच में से पास हो रहा है, एंड दिस इज द z एक्सिस. So what is the coordinate of source 1? Source 1 के coordinate क्या है? y की वैल्यू है dy2, x = 0 है यहाँ पर. z की वैल्यू क्या है? 0. h2 के कोऑर्डिनेट क्या है?
बाई नीचे को है -d/2, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, z की वैल्यू 0। इसके लिए y की वैल्यू y, z की वैल्यू z, x की वैल्यू d है इस पूरे पेपर में हर जगह। सो व्हाट इज r1? r1 कितना होगा? ये पॉइंट को कैसे लिखेंगे s1 को? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू dy2, z की वैल्यू 0। ये पॉइंट P है। P को आप कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू d, y इज y, z की वैल्यू z। व्हाट इज r1? r1 किसके बराबर है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सो r1 स्क्वायर इज हाउ मच? d minus 0 स्क्वायर प्लस y minus dy2 स्क्वायर प्लस z minus 0 स्क्वायर। और r1 किसके बराबर है? इसके स्क्वायर रूट के बराबर। r2 की वैल्यू क्या होगी? d स्क्वायर y प्लस dy2 स्क्वायर z स्क्वायर। r1 माइनस r2 विल डिसाइड कि आपको यहाँ पे ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा, राइट? सो r1 माइनस r2, मान लेते हैं इसको हम डेल्टा बोलेंगे। किसके बराबर है ये? स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई प्लस dy2 स्क्वायर माइनस प्लस z स्क्वायर माइनस सो यदि डेल्टा आपका 0 है, प्लस माइनस लेमडा है, प्लस माइनस 2 लेमडा है, तो आपको क्या मिलेगा? ब्राइट। डेल्टा यदि प्लस माइनस लेमडा बाई 2 है, प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2 है, प्लस माइनस 5 लेमडा बाई 2 है, तब आपको क्या मिलेगा? डार्क। बाद में चेक करेंगे डेल्टा क्या है, बट फॉर ए पर्टिकुलर डेल्टा कितना आएगा? डेट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। डेल्टा इज फिक्स। अभी डेल्टा को फिक्स कर लेते हैं। हमें नहीं पता डेल्टा कितना है। डेल्टा इज फिक्स, कुछ फिक्स वैल्यू है एंड कांस्टेंट, मतलब जो भी है, लेमडा है, 2 लेमडा जो भी है, बट वो चेंज नहीं हो रहा है। वो सारे पॉइंट्स किस तरह का कर्व बनाएंगे? मान लीजिए डेल्टा लेमडा है, तो किस किस पॉइंट के लिए डेल्टा लेमडा है इस पेपर पर, बता सकते हैं? या डेल्टा 2 लेमडा है तो किस किस पॉइंट के लिए डेल्टा 2 लेमडा है? सर हाइपरबोला आएगा। सो अभी हम मान लेते हैं डेल्टा डेल्टा है, लेमडा 2 लेमडा बाद में भी रख सकते हैं। और किस किस पॉइंट के लिए है? ऑब्वियसली यही इक्वेशन आपको बताएगी। किसकी इक्वेशन है ये? हाइपरबोला। सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ बाई एंड जेड। बाकी तो सब कांस्टेंट है इसमें, f बाई जेड और सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे कर सकते हैं आपके ऊपर है। एंड सी ये किसकी इक्वेशन बताता है, एंड दैट विल बी द एक्चुअल शेप ऑफ द पैटर्न हियर। वो वास्तव में एक्चुअल शेप होगी। ये पहला असाइनमेंट है। सेकंड असाइनमेंट, नाउ यू गेट एक्चुअल शेप। कोई अप्रोक्सीमेशन आपने लगाया ही नहीं थ्रू आउट। अब अप्रोक्सीमेशन लगा के देखिए क्या होता है। सो जस्ट एज्यूम दैट स्मॉल d इज मच लेस देन कैपिटल D। तो इस एजम्पशन के साथ ये जो भी शेप बन रही थी इस पे, जिसको आप हाइपरबोला कह रहे हैं, हाउ डज इट चेंज? ये चेंज किस तरीके से होती है और किस शेप की ओर कन्वर्ज करती है? हाइपरबोला ही रहेंगे, कोई दूसरी शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, किधर को जाएंगे? सो ट्राई ऑन योर ओन। ये सब आप करते आ रहे हैं, प्लस 2 में अपने इतना मैथ किया होगा। देखिए क्या बनता है। एनी डाउट विद द कंसेप्ट? कंसेप्ट को लेके कोई डाउट है? नो सर। मैथमेटिक्स
इस फिगर में कोई कंफ्यूजन कहीं? सर कांस्टेंट कैसा है? सी, जो भी पाथ डिफरेंस है r1 minus r2 इज समथिंग, मान लीजिए वो समथिंग इज लैम्डा, एज लॉन्ग एज दिस पाथ डिफरेंस इज कांस्टेंट, डज ब्राइटनेस चेंज, या ब्राइटनेस चेंज होगी यदि पाथ डिफरेंस नहीं बदलता है तो? नो नो, राइट। इस पॉइंट के लिए r1 minus r2 इज, हमने माना डेल्टा है, डेल्टा कुछ भी हो सकता है, क्या वो इसी पॉइंट के लिए डेल्टा होगा? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इस स्क्रीन पे जहां पे सेम डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी सेम आ सकता है। लेट अस से डेल्टा इज इक्वल टू 3, मान लीजिए r1 minus r2 3 के बराबर आया, तो क्या r1 minus r2 सिर्फ इसी पॉइंट के लिए 3 है? इस पॉइंट के लिए भी 3 हो सकता है, इसी स्क्रीन का कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 आ सकता है। यस माय क्वेश्चन इज, वो सारे पॉइंट जिनके लिए r1 minus r2 3 है, किस तरह की शेप बनाते हैं? अब वो 3 यदि लैम्डा के बराबर है, ऑब्वियसली दैट शेप विल रिप्रेजेंट ए ब्राइट लाइन, आपको उस तरह का एक ब्राइट कर्व दिखेगा एक्सपेरिमेंट में। यदि वो 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, if that 3 is equal to lambda by 2, the same curve will look like a dark line to the experiment, dark line or dark curve. Okay, so अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि हम ब्राइट के लिए खोज रहे हैं या डार्क के लिए खोज रहे हैं। लैम्डा को, डेल्टा को लैम्डा रखेंगे वो ब्राइट के लिए हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 रखेंगे डार्क के लिए हो जाएगा। सो अभी डेल्टा को सिर्फ डेल्टा मान लीजिए और जस्ट फाइंड आउट द कर्व। ओके, so with this let me stop here. I think some problems are formula based, कुछ problems तो formula based है, you can easily do it. Problem number 6 I'll ask you again, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, so copy कर सकते हैं for discussion, but if I ask you you will have to explain, so इसको ignore मत कीजिएगा, आपको sincerely करना है। Any other doubt? Okay, so now you can leave.